Can we start? Yes, sir. We can. Okay, great. So tell me, what are different technologies have you used in your project? Means different technologies in your last project. Sir, can you repeat the question? I can't hear your question. Okay. Can you hear me properly now? Yes, sir. Okay. My question was, what are the different technologies have you used in your last project? I mean, Uh, front-end yes, technologies. sir. Yes, sir. In my last project, I used SAS. I used Angular. It's a framework of JavaScript. Yes, sir. And HTML as well. Okay, HTML, CSS means you are aware about all those things. Okay, great. Yes. So, ओके सो टेक्नोलॉजी में हम क्या क्या कर सकते हैं HTML5 CSS3 SAS Bootstrap 4 ES6 और एंगुलर का लेटेस्ट वर्जन जो भी आपने काम किया है एंगुलर का वर्जन मेंशन करना चाहिए राइट तो हम कह सकते हैं कि एंगुलर 10 पे मैंने काम किया है ओके Abhijit, tell me, as you know, this current version of HTML is HTML5, right? Yes. So, what are different tags which are available in HTML5, and Uh, from that, what are tags you have used in your recent project? what's the sir, last question? What is your last question? Means what are different HTML5 tags you have used in your project? Yes, sir. Uh, in HTML5, there is lots of new tags involved. That is section, audio, video, and in my latest project, I use section and video tag for describing the uh, portfolio of bakery. ओके सो क्वेश्चन वही है प्रॉब्लम वही है कि आप खींचते जा रहे हो आंसर को राइट तो क्वेश्चन इज सिंपल है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन व्हाट आर द एचटीएमएल टैग्स वी हैव न्यू एचटीएमएल टैग्स इन एचटीएमएल5 तो बोलना चाहिए हेडर है फुटर नाउ मेन असाइड सेक्शन बस इतना बोल के स्टॉप होना चाहिए कि मैंने ये और चीजें रिपीट हो रही है आपने कहा कि सेक्शन यूज किया है बाद में बोला कौन सा टैग Video. वीडियो राइट और वापस आपसे कह रहे हो कि मैंने लेटेस्ट प्रोजेक्ट में बेकरी प्रोजेक्ट में मैंने सेक्शन और वीडियो प्रोजेक्ट के बारे में हमने तो अभी पूछा ही नहीं है राइट और आपको एटलीस्ट कम से कम 5-6 टैग तो मालूम होना चाहिए यहाँ पे Okay, section, and what is use of section means why we use that? Yes, sir. Section is used to uh, uh, distinguish the area of HTML. This is a new in HTML5. There is uh, no any tag available as per section in HTML4. ओके सो आपने कहा कि डिस्टिंग्विश करना है ना सो लॉजिकल डिस्टिंग्विशन टू फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्राउजर राइट तो सेक्शन हम क्या क्यों यूज करते हैं अगर हम कोई भी डिजाइन देखते हैं हमारे आंखों से हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि these are the separate sections of this layout right but how can browser understand these things so for that purpose section HTML tag is introduced logical separation of the layout for the understanding of browser I think you are mute, sir. Right. And do you know header and footer tag in Yes, sir. HTML5? Yes, sir. Yes, sir. Header and footer as well is introduced in HTML5, and that also we use in our latest project. Okay, and what about ओके सो ये लेटेस्ट प्रोजेक्ट पे बहुत ही प्यार है नहीं हाँ आई थिंक सर नहीं ने एक दो बार स्टार्टिंग में कहने पूछा से था अच्छा कि हाँ आपने यूज किया है कौन से यूज किया यस है यस वैसे इसलिए मैंने वो रिपीट कर रहा ओके ठीक embed tag? Have you used था विच टैग यूज सर embed? एम्बेड em टैग यूज आस्किंग em टैग No, no, embed, embed. embd Okay, no sir no worries. Uh, so what is embedded tag what is it यस यस मैं अभी पूछ रहा हूँ कि एम्बेड टैग क्या है I don't know. अच्छा तो
तो ये करना चाहिए इंटर होने के बाद, Yes, है ना? sir. जो वो क्वेश्चन हमें नहीं है तो देखना तो चाहिए। एक्चुअली ये मैं डिप्रिकेटेड है, अभी यूज नहीं करते मेरे टैग। मैं वो Great. वीडियो का And वेट कर रहा let's था, say, वीडियो आने के बाद चेक कर। ओके, अच्छा वीडियो नहीं मिला है, ठीक, सही है। suppose there is one HTML tag and that having attribute, right? And if we want to means update that attribute dynamically, how we can achieve that? Yeah, in by using the Angular framework, we can achieve dynamically or attribute binding. ओके, सो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि एट्रीब्यूट की वैल्यू अपडेट करना है डायनामिकली, लेकिन ये नहीं बताया कि कैसे करना है, एंगुलर से करना है या कहाँ जेक्यूरी करना है या जावास्क्रिप्ट। तो पूछने का पर्पस ये हो सकता है कि ये जेक्यूरी से या जावास्क्रिप्ट से होगा। मोस्टली ये जावास्क्रिप्ट को रेफरेंस में रख के क्वेश्चन पूछा गया है। तो जावास्क्रिप्ट में हम एट्रीब्यूट की वैल्यू कैसे अपडेट करते हैं? बाय यूजिंग सेट एट्रीब्यूट मेथड, राइट? और ये जो प्रॉपर्टी बाइंडिंग बताई है वो अलग चीज है, राइट? And if I say we need to use JavaScript, then in that case, Okay. In JavaScript as well, we can change or we can vary the value of that tag. Uh, okay. ओके, ये तो इंटरव्यू को पता ही है कि हम जावास्क्रिप्ट में कर सकते हैं, तो हमें वापस से इंटरव्यू को बताने की जरूरत नहीं है। उसने क्वेश्चन पूछा है, अगर हमें आता है तो बोलना है क्या आंसर है, नहीं आता है तो तभी के तभी बोल दो कि सॉरी सर, मुझे सोचना पड़ेगा, है ना? आई हैव टू लुक इन दिस वगैरह, जो भी आंसर्स होते हैं उस टाइम के लिए वो आंसर दे। yeah. But how we can do that? Okay. Let me recall that. सो ये आंसर बोलना ही था, तो पहले ही बोल देते। कोई भी इंटरव्यू पे अच्छा नहीं लगा, आप उसका टाइम वेस्ट कर देते, है ना? क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो तो एक तो डेवलपमेंट छोड़ के इधर आया है आपका इंटरव्यू लेने, वापस से जाके जितना टाइम आपको दिया है उतना काम तो उस दिन में उसको करना ही पड़ता है, राइट? तो ये चीजें अच्छी नहीं लगती। नहीं आता है तभी के तभी बोल दो। ऐसा नहीं है कि मैं 1 मिनट सोचूंगा उसके बाद मेरे को याद आएगा, तो आप अभी बोल दो और थोड़ी देर बाद आपको याद आता है तो तब बता देना कि हाँ सर, वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट बाय यूजिंग सेट एट्रीब्यूट मेथड। तो मेरे चेहरे पे दिख गया No है, worries. मुझे नहीं And भूल गया बस। हाँ, यस, तो बोल देना चाहिए। suppose in CSS, if we want to do any calculations, then how we will do? Yeah, by using calc function, we can do calculation in CSS. And without calc, is it possible to achieve that? No, sir. Calc is a function, or we for calculation, and we have to use that. Have you heard about box sizing? Yes, sir. Yes, I guess might be we can use alternative for calc, box sizing. Okay. ओके, सो हम कर सकते हैं बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी को यूज कैल्सी की जगह? नहीं सर। तो आपको बोलना चाहिए था, ये तो गूगल ही डाला था अमोल ने आपको कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसे चेक करना है। उनको भी पता है कि ये कैल्सी फंक्शन को हम रिप्लेस नहीं कर सकते किसी और चीज से, राइट? कैल्सी हम यूज क्यों करते हैं? टू कैलकुलेट, टू मेक कैलकुलेशन बिटवीन टू डिफरेंट यूनिट्स, राइट? परसेंटेज पिक्सेल्स है, आरईएम है, वीएच है, वीडब्ल्यू है। तो इस इन डिफरेंट जो यूनिट्स है, अगर उनमें हमें कैलकुलेशन करना है तो हम कैल्सी फंक्शन यूज करते हैं। तो इसका और बॉक्स साइजिंग का तो कोई पर्पस ही नहीं बनता। नहीं। अगर इंटरव्यू अगर ऐसे बोल रहा है तो आपको चेक कर रहा है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक कर रहा है। आप चुपचाप बैठे, आपको पता है कि बॉक्स साइजिंग डिफरेंट थिंग, कैल्सी इज अ डिफरेंट थिंग। दिस इज अ गूगली क्वेश्चन, करेक्ट?
तो आपको वहां पे बोल देना है कि नहीं सर ये ऐसा नहीं होता। हम 100% अगर श्योर है तो हमें बोलना है वहां पे नहीं सर ये ऐसा नहीं होता, बॉक्स साइजिंग अलग है और कैल्सी फंक्शन अलग है। No worries. Uh, Tell me what is CSS box model? Yeah, in CSX box model there is ये क्वेश्चन करेक्ट है तो मैं थोड़ा सा आगे ले लेता हूँ, है ना। आंसर भी करेक्ट बताया आपने इसमें। three things. Yeah, there is a as well in SAS, and it is different in CSS. We doesn't have any anything about looking about that, and SAS is a very faster than CSS also. Okay. सो SAS कैसे फास्टर है CSS से, आप कैसे एक्सप्लेन कर पाओगे? अलग अलग फाइल यूज होती है, ओके इसकी वजह से वो फास्ट काम करता है। नहीं, ऐसा तो हमने कभी डिस्कस नहीं किया है, या मुझे तो नहीं पता, आपने कहीं पढ़ा है? नहीं, मैं ऐसे है ना। तो SAS का बेनिफिट क्या है कि कोड क्या है हम मेंटेन कर सकते हैं अच्छे से, राइट। अगर हम एक प्रोजेक्ट पे 1-2 साल काम करते जा रहे हैं और CSS लिख रहे हैं, 1-2 फाइल CSS की लिखते हैं, तो 10-20 हजार लाइन का अगर कोड है उसको मेंटेन करना बहुत प्रॉब्लम होता है, प्रोजेक्ट जब बहुत आगे जाता है। तो SAS ये सारी चीजें अच्छे से मेंटेन करता है, राइट। और SAS में रियूजेबल चीजें मिलती है जैसे कि मिक्सिंग्स है, फंक्शंस है। ये एक्चुअली ये बोलना चाहिए था आपको, है ना। तो ये आपने पता नहीं, ये शायद खुद से बोला होगा ये SAS इज फास्टर देन CSS। ओके नहीं, आई थिंक मैंने कहाँ पे पढ़ा था ये फर्स्ट। ओके ठीक है, फिर चेक करते हैं। And you mentioned like nested. What is nested in SAS? Nested, I told the nested, sir. Yeah, nested. What is Uh, yeah, in nested, we can give a CSS in a nested manner, that is uh, from a parent to child or from child to grandchild, at that manner. okay? And there is one preprocessor use for SAS. What is that? Yeah, we use a prepose. एक्चुअली ये भी गूगली था। SAS itself is a preprocessor of CSS। ये तो आपको गूगली क्वेश्चन डाला अमल सर ने कि आप क्या आंसर देते हो, ये जानबूझ के कुछ क्वेश्चंस उन्होंने पूछे तो आपने बोल दिया ये प्रीपोज है। ये प्रीपोज तो एक टूल है SAS को CSS में कन्वर्ट करने के लिए। जानबूझ के उन्होंने गलत गलत क्वेश्चन पूछे और आपने उनको भी आंसर दे दिया है। वो एक दिन पहले प्रीपोज का सेशन हुआ था, तो प्रीपोज इट इज टूल है ना। व्हाई वी यूज प्रीपोज to convert SAS into CSS। तो ये प्रीप्रोसेसर कहाँ से हो गया? SAS itself is preprocessor of CSS, right? हाँ, उन्होंने अगर पूछा होता कि वो do you know any library of SAS, तो आप बोल सकते कि भाई कंपास लाइब्रेरी है जो SAS की लाइब्रेरी है, वो हम यूज कर सकते हैं। तो उन्होंने प्रीप्रोसेसर पूछा है, क्वेश्चन पे आप थोड़ा सा ध्यान दो, है ना। ऐसे बहुत सारे गूगली क्वेश्चन है इस इंटरव्यू में, जो गलत क्वेश्चन थे आपने जय माता दी बोल के टिक करके आए। for SAS, for Okay. converting the SAS code to CSS. And also, can you explain how SAS work? Means how it works? SAS. Yeah, for SAS, SAS is not run in our browser. For that we have to convert a SAS file to a CSS file, and for that we use prepose as well, or in Visual Studio there is a one area that we can change SAS file to a CSS file. Okay. ओके सो विजुअल स्टूडियो में नहीं करना चाहिए, हमें कहना चाहिए कि हम नोड मॉड्यूल्स अगर यूज कर रहे हैं हमारे प्रोजेक्ट में, है ना, तो ये प्रॉपर वर्डिंग आपको थोड़ा सा प्रिपेयर करना पड़ेगा। आपने ट्राई किया अच्छे से आंसर देने का, तो लेकिन विजुअल स्टूडियो नहीं करना चाहिए। आपको कहना चाहिए कि अगर हमारे प्रोजेक्ट में नोड मॉड्यूल्स है, वी कैन इंस्टॉल SAS node module in our project by command line interface CLI, and there we can there convert SAS into CSS by executing command line interface, right?
तो ये चीजों पे ध्यान रखो, ये इंटरव्यू का जब फीडबैक मिलेगा आपको तो ये नोट डाउन करके ले लो कि कहाँ पे क्या वर्ड बोलना है। आपको आंसर पता था लेकिन थोड़ा सा वर्ड्स मालूम नहीं है क्योंकि ये सारी चीजें हमने अभी अभी पढ़ी है, राइट? तो उसकी वजह से भी हो सकता है। Means you mean to say we don't use SAS files directly, right? Yeah, we don't use the SAS file directly. We have to Okay, change it in CSS. okay, great. And there is one file called mixin, right? In Yeah, SAS. What is that? yeah. Mixing is a combination, or we can say a combination of a CSS. By using a mixing, we can uh, minimize our code and reuse that code. Okay. And how you handle like media? ओके, सो क्वेश्चन क्या पूछा उन्होंने यहाँ पे भी थोड़ा सा आपको ट्रिक में डाला था कि मिक्सिंग फाइल्स क्या होती है। तो मिक्सिंग ये फाइल नहीं है, कि आपको ये बोलना चाहिए कि मिक्सिंग क्या है, एक टर्मिनोलॉजी है सैस। मिक्सिंग करके कोई फाइल नहीं है हमारे सैस में। हम किसी फाइल में एक मिक्सिंग क्रिएट कर सकते हैं और मिक्सिंग क्या करता है, जो सीएसएस कोड हमें बार बार यूज करना है वो रिप्रोड्यूस करके देता है। मिक्सिंग इज लाइक अ फंक्शंस, है ना, वी कैन सेट पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट्स देयर, राइट? तो ये आपको आपने बोला है सही से। query related code in SAS? ये सारे क्वेश्चंस आपने सही दिए है आप, और आपको ये भी पूछा है कि 300 टू 600 या 400 टू 600 समथिंग ऐसा कुछ क्वेश्चन था, वो भी आपने प्रॉपरली दिया है ना, कि हम वो कर्ली ब्रैकेट में कंडीशन डालिए, मिनिमम विड्थ इतना है 400 और मैक्सिमम विड्थ 600, उसके अंदर पूरा सीएसएस लिखेंगे। ये आपने प्रॉपर लिखा है, तो मैं ये आगे ले लेता हूँ थोड़ा सा। Yeah, it doesn't On desktop version. Is on desktop or related equipment, and for that we use a property that is a background image center. So it's the image start with the center of that image. So user uh, can watch or can see image that is started with center point of that image. So it will look good on mobile as well. you have used like media, you will use media query. What will be the syntax in that case? Means, suppose device width is let's say 600, then what will be the syntax for Okay, media query? we will write at the rate media, then media any name or to for that media, then and in bracket we will write max width is 500 or 600 code. थैंक यू अमर। सो अभिजीत, Yes, sir. is JavaScript synchronous or asynchronous? JavaScript is a synchronous, sir. Okay, and how can we make it asynchronous? Yes, sir. By giving a function or giving a time delay or set timeout something, we can make that asynchronous. Okay, the expected answer is we can make JavaScript asynchronous by using callback functions, by using promises, by using async await, right? So ये set amount तो हमने example लिया था because at that time we don't have server, we don't have any API call, तो हमें देखना था कि अगर किसी फंक्शन को एग्जीक्यूशन में टाइम लगता है और उसके बाद नीचे अगर कोई फंक्शन है वो जल्दी से एग्जीक्यूट होता है, तो उस टाइम जावास्क्रिप्ट कैसे वर्क होता है सिंक्रोनस वेयर में। तो इसलिए हमने वो एग्जांपल बनाया था बाय यूजिंग सेट टाइम आउट, राइट? तो अगर हमें वो असिंक्रोनस करना है तो हमारे पास तीन ऑप्शन है अभी के लिए, राइट? कॉलबैक फंक्शन, प्रोमिसेस एंड async await, राइट? तो ये बहुत ही सही क्वेश्चन है और इसको सही तरीके से आंसर देना है। ओके, तो ये क्वेश्चन नोट डाउन करके ले लो, इसके ऊपर अच्छे से प्रिपरेशन करो। Or async await, we can use async. Okay, so what is callback function? Yes, callback function, a function which having a argument is called a callback function. ओके, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो गए, राइट? क्योंकि अब यहाँ पे आप डबल माइंड में आ गए। आपके दिमाग में एक पहले से डेफिनेशन है
जो हमने बहुत बार डिस्कस की, अ फंक्शन विच इज गेट एग्जीक्यूटेड आफ्टर समथिंग हैपन। ये सिंपल सी स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन है। अगर ये आप बताओगे किसी को, कोई डिनाई नहीं करेगा। लेकिन आपने कहीं पे तो पढ़ा है ब्लॉग्स या किसी अच्छे से वेबसाइट में कि फंक्शन जिसमें आर्गुमेंट होता है या पैरामीटर होता है वो कॉल बैक फंक्शन होता है, लेकिन आप वो वहाँ पे रिकॉल नहीं कर पाएंगे, राइट। तो इसके लिए अच्छा सा सोल्यूशन एक ही है, ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपने खुद से नोट्स बनाओ, क्योंकि हर क्वेश्चन को हर एक पर्सन का तरीका अलग होता है एक्सप्रेस करने का। मैंने आपको अगर कहा कि कॉल बैक फंक्शन क्या है, द फंक्शन विच इज गेट एग्जीक्यूटेड आफ्टर समथिंग हैपन। अमोल सर उसको कोई कुछ अलग तरीके से बताएंगे, शुभदीप सर को उसको कुछ और तरीके से बताएंगे। तो आपको जो सिंपल लगता है तीनों में से वो चूज कर लो, उसको कहीं पे तो नोट डाउन कर लो और उसी को फॉलो करते जाओ, राइट। क्योंकि डेफिनेशन बताने का हर एक का तरीका अलग अलग हो सकता है। एंड व्हाट इज कॉल बैक हेल? Yes, sir. What you said? What is callback hell? Hail. Hell, hell. Oh, H-E-L-L. So what are the promises in JavaScript? yeah, there is a response and reject promises. This response and reject are the promise. Response and reject are the state of. Yes. तो मुझे जहां तक लगा कि आपका थोड़ा सा वीक एरिया कहाँ पे स्टार्ट होता है। आपका जावास्क्रिप्ट बेसिक अच्छा है, ES5 भी अच्छा है। असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट में आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो, उसको वहाँ थोड़ा सा प्रिपरेशन करने की जरूरत है आपको वहाँ पे, राइट। असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड ES6 में थोड़ा सा, राइट। जितना भी इंटरव्यू मैंने देखा, आप असिंक्रोनस में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आप प्रिपेयर नहीं हो, क्या चीजें आपको पता है लेकिन आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। तो बेस्ट वे यही है कि आप खुद से इसके नोट्स निकालो, सारे क्वेश्चंस का उसके आंसर्स खुद से लिखो, जहाँ पे आपको अच्छे आंसर मिलते हैं और उसको फॉलो करते जाओ, है ना। आपको चीजें पता है, थोड़ा सा एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम आ रहा है और ये एक दो इंटरव्यू में हो जाएगा कवर। ज्यादा वरी करने की बात नहीं है, बस एफर्ट्स जैसे अभी चल रहे हैं वैसे उसको थोड़ा सा और एक्सेलेरेट करते जाना है। Fetch and call. What you say? What are the data types we have in JavaScript? Yeah, there is two types of data types. That is primitive data types and non-primitive data types. Okay. In, yeah, continue. Okay. Primitive data type. So मैंने थोड़ा हाई नोट से स्टार्ट किया था इंटरव्यू और थोड़े फिर यहाँ पे मैंने नॉर्मल क्वेश्चन पूछे, चेक किया कि ES5 कैसा चल रहा है, वो तो सही है, यहाँ पे प्रॉपर आंसर्स आए, राइट। Is defined as its hold the value. ओके, यहाँ पे आंसर करेक्ट है सारे, तो मैं थोड़ा सा आगे ले लेता हूँ directly. Just array name dot length is equal to 0. ये क्वेश्चन हमने पहले वाले इंटरव्यू में भी पूछा है कि किसी एरे को अगर एम्प्टी करना है तो कैसे कर सकते हैं, राइट। वेरियस वे, हम फॉर लूप यूज कर सकते हैं, फॉर ईच लूप यूज कर सकते हैं, बहुत से तरीके। सिंपलेस्ट वे क्या है, एरे नेम डॉट लेंथ इज इक्वल टू 0, अपने आप वो एम्प्टी हो जाएगा, है ना। या वापस अगर वो लेट या वैर से अगर इनिशियलाइज किया है हमने, तो उसको वापस से स्क्वायर ब्रैकेट डाल दो एम्प्टी वाला, फिर भी अपने आप एम्प्टी हो जाता है ना। छोटी-छोटी हो गया था सर। हाँ, यस। तो थोड़ा सा इसके ऊपर देना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आंसर आपके पास है ऑलरेडी। Can I enter in such a way? Suppose I want to remove last element of the array. Okay. Okay, we use splice method. Suppose okay, so इस मेथड पे हमने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया है। जब भी हमने एरे मेथड स्टार्ट किए थे पढ़ना, तो बाकी ये चीजें तो हमने आसानी से कर ली थी, पुश, पॉप, शिफ्ट, अनशिफ्ट वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये मेथड हमने बहुत सी प्रैक्टिस की है और इंटरव्यू में अगर कोई एरे पे क्वेश्चन पूछना चाहता है आपको, 101% इस मेथड पे क्वेश्चन आएगा, क्योंकि लास्ट और फर्स्ट एलिमेंट कैसे ऐड करना है, कैसे रिमूव करना है, ये सबको पता है और ये बहुत ईजी है। तो एरे के जितने भी मेथड्स है उसमें थोड़ी सी ट्रिकी मेथड कौन सी है, यही है।
तो जो भी सारे ट्रिकी वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं वैसे कंसेप्ट पे हमें ज्यादा फोकस देना है, राइट? I want to print values from 1 to 10 in console without using any loop. Can you write the code for same? Yes, sir. By using math.random, No, we can. I don't want to print random values. I want to print values from 1 to 10, one by one line, without using any loop. Okay. If I want to print random values between 10 to 15, can you write the code for same? So ये जो पहले वाला क्वेश्चन है उसका आंसर पता चला? अगर हमें 1 to 10, yes? नहीं सर. ओके, तो देखना चाहिए था, इंटरव्यू के 2 दिन हो गए. यस, अपने क्यूरियोसिटी लेवल इतना हाई होना चाहिए ना, जैसे ही इंटरव्यू फिनिश होता है नेक्स्ट सेकंड हमें गूगल सर्च करना चाहिए कि कौन सी चीजें हमें आई नहीं या कौन सी चीजें हमें पता नहीं है कि भाई इंटरव्यू में इसने पूछ लिया और मुझे पता भी नहीं है जावास्क्रिप्ट में ये एग्जिस्ट होता है. हाँ, राइट. और वैसे तो ये यस, क्योंकि अगर लेट से हाँ वीडियो नहीं था मान सकते, बट अगर 20 to 30 क्वेश्चंस आपको पूछे, एटलीस्ट 5-10 तो आपके ध्यान में रहेंगे, बराबर कि नहीं? तो उतने तो करने चाहिए थे. वो भले ही ये अपना ये वाला ये रहे मॉक इंटरव्यू रहे या एक्चुअल रहे, करना ही है. और ये वाला तो करना ही चाहिए था आपने, क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चंस था. और ऐसा नहीं कि हमने डिस्कस नहीं किया, वी ऑलरेडी हैव डिस्कस दिस क्वेश्चंस. ये क्वेश्चंस मैंने बताया, भले ही हमने ये इसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं की है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको मैंने ऑलरेडी बताया है. ओके, तो रिकर्सिव फंक्शंस करके एक कंसेप्ट है, उसको गूगल सर्च करो आज आप, उसके ऊपर वर्क करो, इसका आउटपुट लाओ और कल हमें दिखो, राइट? और ये जो रिकर्सिव जो कॉन्सेप्ट है ना, उससे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, तो अच्छे से करना इसको, ठीक है? Yes, sir. By using math.random, we can achieve that code, but we have to give a two if condition of two if condition. That is, in if condition, we have to give lesser than 10 or greater than 10 or lesser than 20 condition to that number. ओके, तो मैंने आपको पहले ही कहा था क्वेश्चन के टाइम कि कैन यू राइट द कोड फॉर सेम, है ना? फिर भी आप एक्सप्लेन कर रहे हो, तो आपको तभी कोडिंग स्टार्ट करनी चाहिए. और जब भी हम इंटरव्यू में इंटरव्यू के लिए आते हैं और आपका सपोज ऑनलाइन इंटरव्यू है ना जूम पे, तो ऑलरेडी हमारे पास एडिटर वगैरह सब रेडी होना चाहिए, या कोई ऑनलाइन टूल यूज कर सकते हैं, कोड पेन है ना, वैसा कोई टूल ओपन करके रखो. अगर कोई इंटरव्यूअर आपको क्वेश्चन थ्रो करता है और बोलता है कि कोड करके दिखाओ, तो वहाँ पे टाइम नहीं जाना चाहिए, है ना? तो फर्स्ट टाइम था ऐसा इंटरव्यू, इसलिए आपको पता नहीं, नेक्स्ट टाइम से ये कर लेना कवर. तो मैं थोड़ा आगे ले लेता हूँ. इस क्वेश्चन इसमें क्या प्रॉब्लम है आप बता पाओगे? इसमें एक प्रॉब्लम है, Is printing prompt input. Yes sir, इसमें कभी कभार प्रिंट नहीं होगा, अगर 0 से या 10 से कम अगर रहा तो प्रिंट नहीं होगा, तो आउटपुट कुछ भी नहीं देखे. यस, आउटपुट कुछ नहीं आता, तो हमारा क्वेश्चन हमारा कोड ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? तो 10 to 20 वैल्यू हो रही है प्रिंट, बट समटाइम्स इज नॉट प्रिंटिंग एनीथिंग. तो ऐसा होना चाहिए, इसको प्रॉपर तरीके से और कोड कर सकते थे हम कि वो परफेक्टली प्रिंट कर पाए 10 to 20. तो इसको आपने चेक किया बाद में इंटरव्यू होने के बाद कि क्या कोड होना चाहिए था और क्या आपने आए. पहली चीज यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन की जरूरत ही नहीं. Yes sir,
हमें क्या करना चाहिए, मैथ डॉट रैंडम इनटू समथिंग जो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज है उसका यूज करके, और यहाँ पे दो पैरामीटर भी होने चाहिए थे रैंडम वैल्यू फंक्शन में, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू, और उसका ही यूज करके हमें पूरा फंक्शन लिखना था। तो नेक्स्ट इज प्राइम नंबर, ये भी करेक्ट आया। Yeah, you are almost there. For line number 24. That is not a prime number, but 1. So you have to write condition. Count is equal to 1. Line number 19. No. In that same condition, if count is equal to 2, then it will not a prime number. yes. Lexical spread the remaining array spread the remaining array element and vice versa. Rest operator can ओके तो या मैंने जैसे कहा कि ये 6 पे थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा। अब पता है आपको रेस्ट कहाँ पे करते हैं यूज, स्प्रेड कहाँ पे करते हैं, तो स्प्रेड कहाँ पे करते हैं, टू अनपैक एरे एलिमेंट्स टू मेक देम सेपरेट, और रेस्ट कहाँ पे यूज करते हैं, अगर हमारे पास मल्टीपल एलिमेंट्स है उनको हमें एक एरे में कंबाइन करना है, पैक करना है, तो हम रेस्ट ऑपरेटर यूज करते हैं। merging out the rested element or all the elements of an array. And in both operator we use triple dot syntax. What is event propagation? Use our JavaScript file in our CS। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि इवेंट प्रोपोगेशन, इवेंट बबलिंग, इवेंट बस्टिंग क्या होता है, ये आपको पढ़ना, और ऑलमोस्ट ये डिस्कशन हमारा 1.5 मंथ पहले हुआ है, करेक्ट? हेलो अभिजीत, आर यू देयर? ओके, Yes sir. सो हाँ यस, तो इसके ऊपर आपने प्रिपरेशन नहीं किया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताए कि खुद से करना है, इवेंट प्रोपोगेशन, इवेंट बबलिंग, इवेंट बस्टिंग, ऑल बाइंड अप, ये डेफिनेटली पूछे जाने वाले क्वेश्चंस। तो आई होप नेक्स्ट इंटरव्यू में आप ये प्रिपेयर करके CSS फाइल इन जावास्क्रिप्ट। Sir, definitely. Can we import our CSS file? ओके, मैंने आपको ऑलरेडी क्लू दिया था वहां पे, कैन बी इंपोर्ट, है ना? तो @ इंपोर्ट जो सिंटैक्स है ना, उससे हम CSS फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट। तो ये आपके लिए एक लर्निंग थी, क्योंकि ये चीज हमने कभी पहले डिस्कस नहीं किया, आपको मालूम ही नहीं है। ये क्वेश्चंस आपको नोट डाउन करना है, देखना है कैसे करते हैं इंपोर्ट CSS को जावास्क्रिप्ट फाइल में। What are the new features we have in ES6? In ES6 we can use asynchronous JavaScript. We can use various array method, that is ये ES6 के तो पॉइंट नहीं है, asynchronous JavaScript ES6 के पहले भी था। We can filter array before ES6 as well। तो ES6 में क्या आता है, लेट आता है, कांस्टेंट आता है, array functions है, रेस्ट पैरामीटर, स्प्रेड ऑपरेटर्स, रेस्ट स्प्रेड, डिस्ट्रक्शन ऑफ array, डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, बहुत सारी चीजें हैं, सिंबल्स आता है, राइट, बिग मैप है,
पे बहुत सारी चीजें हैं जो आप बोल सकते थे वहाँ पे। सो आपने ये 6 का एक भी फीचर बेसिकली वहाँ पे नहीं बताया। filter, reduce, and map method to array. Uh, yes. एक्चुअली आप यहाँ पे ब्लैंक हो गए, एरो फंक्शंस बोलना चाहिए था, एरो फंक्शंस भी हमने ये 6 में पढ़ा है, राइट? Constant that we can use in in ESC in lower version of JavaScript. There is only one variable, that is var keyword, and So what is the difference between var, let and constant? yes sir, in var we can host the host element, but in let and const, when if we declare any element, we can declare any element, but we can't host using a let and const. Okay. Okay.